Hi, welcome to Chikku Media. Thank you. Okay, so first of all, I would like to know about your name, Coral, because it's such a unique name. कभी पहले सुनने को नहीं मिला. We all know कि कोरल का मतलब क्या होता है, but किसी का नाम हो, so किसने रखा ये नाम? मेरे डैड ने रखा है मेरा नाम. And he always he read this word somewhere. उन्होंने अब वो जहाँ पर जिस टाइम पे मेरी मम्मी मुझे एक्सपेक्ट कर रही थी, so he read this word somewhere in his workplace, at his workplace, and then he thought that yes, this is a nice word and this could be a nice name. And my mom was expecting me, so he was hell bent कि अगर daughter हुई तो यही नाम रखेंगे. So that's how मेरा नाम कोरल पड़ा. बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिलते होंगे as always. बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, बहुत कंफ्यूजन होती है. कोमल, जितने भी सिमिलर वर्ड्स हैं, उन सब से बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं लोग. बट यस, कॉम्प्लीमेंट्स की मात्रा ज्यादा है. या स्टारबक्स पे जाते हैं तो नाम पूछते हैं ना, तो वहां पर हर किसी का ही नाम गलत होता है. Absolutely. Yeah. Though I'm not a huge Starbucks fan, but yes, I know what you mean. Yeah. So you are currently doing this popular show Pariniti, which is a really good show and doing very well. So इसमें जो आपका character है, that is Simi, which is a grey shaded character, right? So उसमें Yes, it is. How do you feel playing a negative character? Actually, to be very honest, I have always been very fascinated about negative characters and all the vamps. And I think even as a child, like लोगों को fairy tales पसंद होती है बच्चों को, like you know, और वैसा मुझे I used to like more of the Maleficent kind of characters. I don't know why, like I'm not saying that I'm a evil person, but then I'm very fascinated because and more of it, I feel that जो negative characters में challenge होता है, वो comparatively a notch higher होता है. ये and also people like me who like to play negative characters also like you know like to take that risk कि आपको पता है कि you have to make your audience hate you. Like you know, the more your audience hate you, the more justice you are doing to your character. Yeah. So I think making your audience love you is a comparatively easy job, and in my life I really like challenges that you know I like to work off beat कि okay ये regular pattern है और irregular pattern क्या है. So I am more attracted to that. So yes, I have always been very fascinated to negative characters. और मुझे हमेशा से पता था कि ऐसा नहीं कि मैंने positive characters play नहीं किए. I've done mythological shows also where I've become goddesses like Saraswati, Durga Ma and everyone. But then मुझे हमेशा से पता था if I get a negative character, that is something that I will like to nail it. So yeah. So मेरा next question होने वाला था. I think उसका आंसर हमें already मिल चुका है कि अगर choice मिली negative choose करना है या फिर positive, I think you would choose negative as you said. Always. Yeah. Always. So जैसा कि आपने अपने आंसर में बोला कि you were always fascinated with vamps, तो टीवी पर बचपन से like कोई शो देखा होगा, फेवरेट वैम्प कौन सी रही है? I think ये तो हम सब अपने दिल पे हाथ रख के बोल सकते हैं कि कमोलिका से ज्यादा आइकॉनिक नेगेटिव कैरेक्टर कोई भी नहीं रहा है. I don't think, and she like I mean that was the first of its kind. उसके पहले हमारे सामने ऐसी कोई इतनी like you know out of the box इतना ज्यादा फोकस की हुई वैम्प कोई थी नहीं. मतलब it was very fascinating to see that wow, एक ऐसा कॉन्सेप्ट भी हो सकता है, एक ऐसा कैरेक्टर भी हो सकता है और एक ऐसी एक्टर भी हो सकती है जो इस कैरेक्टर में इतनी कन्विंसिंगली लाइफ डाले कि वो अपने आप में बस एक आइकन बन गई है. आई थिंक कमोलिका, देन आई थिंक रमोना सिकंद. So these were the characters which I grew up watching, and उस समय तो obviously because I never planned to be an actor, so that time I was not really hellbent कि हाँ wow I would want to play this, but given a chance definitely like Kamolika. I think Kamolika. So बचपन में कभी ऐसे किया निक्का with your hair? Always, like you know whenever I used to win a slightest fight in my school, एक कोई argument हो गई वो and I was like vamp. So yeah, that वो element हमेशा से रहा है. I think that is what connects me to my love for negative roles.
Have you ever met Urvashi Dholakia? No, I haven't, unfortunately. Yeah, but so the thing is that when I say that I am fascinated by her, I am a fan, but then I am a very close person in life. तो मैं बहुत ज़्यादा show नहीं करती हूँ कि oh my god I love you, oh my god that is not something that I can do. But then if I meet her, it'll be an opportunity of the lifetime, definitely. तब में और अब में नेगेटिव कैरेक्टर्स में बहुत डिफरेंस आ चुका है बिकॉज सोशल मीडिया की एंट्री हो चुकी है अब, और जब कोई नेगेटिव कैरेक्टर होता है तो उसे बहुत ज्यादा हेट सहनी पड़ती है सोशल मीडिया पर, ट्रोलिंग भी होती है. तो अभी तक कुछ ऐसा हुआ है? उतने बड़े स्केल पे नहीं हुआ है, आई वुड से, बिकॉज राइट नाउ आई एम स्टिल ग्रोइंग इन माय करियर. बट इनिशियली आल्सो व्हेन आई वाज सो माय फर्स्ट शो वाज कुंडली भाग्य. ओके, एंड उसमें मैं एक लव ट्रायंगल में मेरी एंट्री हुई थी. एंड आई हैड टू क्रिएट फ्रिक्शन बिटवीन two characters, two lovers actually. So that time I used to receive a lot of DMs saying that मेरे character का नाम तन्वी था, तो DMs used to be like, तो तन्वी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई समीर और सृष्टि के बीच में आने की, and you know those basic threats that we will beat you, this that and all this. But then yes, so that made me happy कि चलो अच्छी बात है कि लोगों को समझ में आ रहा है कि मैं क्यों, मेरा purpose क्या है शो. Yeah, you are doing a good job then. Exactly, that they took time and it made the effort to go to my social media and let me know that they hate me. So I'm very thankful for all of them. What do you think, how important is social media as an actor? Okay, yeah, that's a very good question. So the thing is that अब से 4-5 साल पहले अगर ये क्वेश्चन होता तो उतना ये आंसर होता कि अभी कुछ सीन नहीं है. लेकिन राइट नाउ पीपल गेट प्रोजेक्ट, बिलीव मी व्हेन आई से दिस, पीपल गेट प्रोजेक्ट ओनली विथ द नंबर ऑफ देयर फॉलोअर्स एंड देयर वेरिफिकेशन स्टेटस ऑन like Instagram. So right now it's, see, irrespective also, अगर ऐसा कुछ होता कि हाँ चलो आपने टैलेंट वो तो है ही कि आपकी मार्केटिंग के लिए पॉपुलर फेस चाहिए या पॉपुलर लोग चाहिए, वेरी गुड. But as actors, I really this is something that I always question people sitting there in power, that fine, I mean ultimately we are all artists. Yeah. So if you guys who have the power and who can make things happen, if you do not count the art factor, the talent factor, then who will? Yeah. So क्योंकि जो authorities हैं वो ही इस रास्ते पे चल रही हैं कि हमें इंस्टाग्राम वाले लोग चाहिए, इसीलिए सोशल मीडिया इम्पोर्टेंट है. अगर अपना पर्सपेक्टिव बदलें, जो क्योंकि अगर कोई राजा देश चला रहा है तो अब राजा पे डिपेंड करता है ना कि उस राजा की मेंटालिटी क्या है, उस राजा को क्या चाहिए. तो उसका देश भी वैसे ही बनेगा. सो हमारी इंडस्ट्री के जो राजा हैं, जो भी लोग हैं, उनको वही चाहिए. उनको एक पॉपुलर, ठीक है, मैं किसी को जज नहीं कर रही हूँ, ठीक है, मे बी ये टाइम ऐसा है, मे बी, और एवरीथिंग वर्क्स इन अ सर्कल. सो मे बी आने वाले टाइम पे व्हेन यू आर टायर्ड ऑफ सीइंग पॉपुलर थिंग्स एंड व्हेन यू आर टायर्ड ऑफ सीइंग सो मच ग्लैमर ऑन योर फेस, मे बी समथिंग इन योर माइंड इंस्टिंक्ट विल कॉल यू बैक टू बी ग्राउंडेड एंड सी फॉर द रियल थिंग्स. सो बिकॉज मुझे पर्सनली इस चीज से लॉस हुआ है, व्हिच इज व्हाई आई एम हाँ, मुझे पर्सनली इस चीज से लॉस हुआ. आई फेस्ड लॉस, आई हैव लॉस्ट प्रोजेक्ट्स बिकॉज आई डोंट हैव अ सर्टेन अमाउंट ऑफ फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम. दैट इज एंड जिसके भी कम फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे, जो भी आर्टिस्ट है, मेरे कंटेम्पररीज या फिर जो भी मेरे फील्ड के नहीं है, किसी और फील्ड के आर्टिस्ट हैं, जो भी हैं, जो भी ये प्रॉब्लम फेस करते हैं, मैं समझ सकती हूँ उनको. बिकॉज हमसे कोई ये नहीं पूछता कि आप मेरा ऑडिशन लो. अगर आपको मेरे ऑडिशन में कुछ समझ नहीं आए तो वो क्योंकि मेरे हिसाब से जितनी मेरी समझ है वो फैक्टर होना चाहिए डिसीजन करने का कि आप एक्टर अच्छे हो या नहीं, या फिर आपको कहीं कास्ट करना है या नहीं, रादर देन और समथिंग. क्योंकि अभी देखो कल टिकटॉक बैन हो गया, यू नेवर नो, अगर इंस्टाग्राम बैन हो जाएगा देन हु इज गोइंग टू डू व्हाट? I mean, yeah, so अगर इस बारे में बात करनी चाहे तो I can talk volumes and volumes, but to answer your question and to keep it crisp, yes,
social media has a huge role for. In fact, this interview, my darling, is happening because social media does play a very important role. So yeah. Yes, you are right. बहुत ज़्यादा exposure हो चुका है social media का, and I think it will go on like this for some years at least. इससे पहले लोग बोर हो जाए इस चीज से. Yes. Okay, so moving on to परिणीति. So show is doing well. इतना ज़्यादा ड्रामा हो चुका है. आने वाले एपिसोड्स में फैंस क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि और क्या होगा राजीव और परी के बीच में, या फिर सिमी का क्या रोल रहेगा उस सब के अंदर? So I think अभी जैसे राजीव is like, you know, there is a sandwich between two women and a man. So, and that this is something that I think people love. Yeah. See, half of the audience love the bonding between Neeti and Rajiv. Half of the audience love the bonding between Rajiv and Pari. And half of the audience love the bonding between Pari and Neeti. Yeah. There are 3 different angles. Yeah. So I think this one show that has, like, you know, a particular audience and a particular like, you know, fan following for every tangent of the character. किसी के साथ भी उसका रिलेशनशिप है, तो मुझे लगता है कि ऑडियंस अगर एक रिलेशनशिप के लिए नहीं देखती होगी तो दूसरे के लिए तो देखती होगी कि इनका क्या चल रहा है, अब इनकी क्या ट्यूनिंग है. सो आई थिंक दिस इज अ वेरी लाइक, यू नो, आई एम रियली ब्लेस्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस शो कि यहाँ पे बहुत सारे एंगेजिंग पॉइंट्स है फॉर द ऑडियंस. एंड अभी राजीव हैज गॉटन मैरिड टू नीति इन द शो, राइट? So there is huge amount of a lot of drama coming. Now is actually the breakthrough ki jahan se drama shuru hoga show mein. And coming to Simi's character, Simi is one snob jisko, like, you know, she has issues with all her bhabis, kyunki usko मतलब उसके choice की भाभियां नहीं है maybe. So उसको इससे भाभियों से, so उसका जो hatred है, I think वो भी कहीं ना कहीं इंस्टिगेट होगा, क्योंकि अभी नीति भी आएगी और अब परी भी आएगी. एंड ऑलरेडी, लाइक, यू नो, मे बी पोटेंशियली सिमी इज समवेयर हैविंग अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर परीज ब्रदर विक्रम, यू नो. सो अगर तो सिमी को विक्रम से प्यार हो जाता है, then Simi will make sure that she behaves herself with Pari. क्योंकि वो उसकी बहन के साथ बिगाड़ना नहीं चाहेगी. So yeah, I mean, let's see. There's anything can happen anytime, or maybe Simi will just move on from Vikram and have another boy to her life. ये भी हो सकता है. Maybe. ड्रामा के लिए कुछ भी. ड्रामा के लिए कुछ भी. And audience भी ready है सब देखने के लिए. Bring it on. बिल्कुल. And actually I would want to thank the audience, क्योंकि ये मैंने कभी पहले पिछले मेरे शोज में प्ले किया नहीं है with like, you know, a romantic angle with another opposite character, male actor. So the kind of love that I'm receiving about, and trust me, there's no love angle that has started yet between Simi and Vikram. We just keep fighting. And उस fight का भी इतना प्यारा response आ रहा है, इतना सारा, and it's very overwhelming. So I'm really motivated to, like, you know, actually Simi is very motivated to be with Vikram right now, just because of the response that the character is getting. Yes. And even Simi, like, you know, usually जैसे जो vamps होते हैं उनके लिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि धमकियां आती है, threats आते हैं कि ये मत करना वरना ये कर देंगे. I also receive messages saying that they love my performance. Because अभी क्या है, अभी के टाइम पे ऑडियंस स्मार्ट हो गई है उनको, क्योंकि ऑब्वियसली जैसे कि सोशल मीडिया के अगर ड्रॉबैक्स हैं तो उसके प्लस पॉइंट्स भी काफी है, प्रोवाइडेड वो प्लस पॉइंट्स, लाइक, यू नो, दे शुड स्टिक टू दैट काइंड ऑफ अ डायरेक्शन ऑफ बीइंग पॉजिटिव. सो ऑब्वियसली जो भी मुझे एक्सपोजर मिला है वो सोशल मीडिया के थ्रू ही मिला है, तो वहां से भी मुझे बहुत सारे, यू नो, मैसेजेस आते हैं, कमेंट्स आते हैं दैट whatever you are doing, whatever character you are playing, it's very convincing and it suits you and you're doing a good job. So, you know, when you receive these kind of things, then आपको लगता है कि हाँ चलो ठीक है, जो जितनी भी मैं मेहनत करती हूँ, it's all, like, you know, justified. Yeah. Social media का यही है that people these days know कि you are doing a character, this is not real you. So correct.
अगर रियल कोरल की बात की जाए तो किस तरह का बॉन्ड है सेट पर सबके साथ, क्योंकि ऑन स्क्रीन क्या हो रहा है वो तो हम देख रहे हैं एपिसोड्स में, ऑफ स्क्रीन क्या बॉन्डिंग रहती है, क्या मस्ती चलती है सेट पर? ओके, ऑफ स्क्रीन, ओके, सो बेसिकली द थिंग इज दैट एज एन एक्टर हम लोग बहुत सारे शोज करते हैं और बहुत सारे सेट्स में अलग अलग तरह का माहौल रहता है और कुछ अच्छे एक्सपीरियंसेस होते हैं, कुछ बुरे एक्सपीरियंसेस होते हैं। पर्सनली मैं बहुत ज्यादा आउटगोइंग इंसान हूँ, मतलब इतनी आउटगोइंग हूँ मैं कि कभी कभी उस चीज का मुझे नुकसान भी हुआ है बहुत। और उससे मैंने सीखा भी है कि ओके फाइन, आई शुड ड्रॉ बाउंड्रीज समटाइम्स एंड आई शुड नॉट लेट, क्योंकि just because you are good to everybody doesn't mean that they will be good to you, so yeah, I mean सेट पे मेरी बॉन्डिंग इनिशियली मैंने ऐसा माइंडसेट रख के मैं उस शो में गई थी कि ठीक है, आई विल कीप बाउंड्रीज एंड आई विल बी ऑल दिस नॉट कि चलो ठीक है, ये किसी से बात नहीं करती, ऐसा वैसा। इट्स नथिंग लाइक आई एम अनअप्रोचेबल, अगर किसी को मुझसे कुछ बात है तो वो मुझसे बात कर सकते हैं ऐसी, और ये उनको भी पता है। बट देन आई थिंक जो एक बार आप जब किसी शो में काम करते हो, आप रोज उन लोगों से मिलते हो, तो आप अपना रियल कैरेक्टर नहीं हाइड कर सकते। This is not correct. Yeah. Sometime or the other you have to you will be yourself. So the thing is that it's a very big lesson for me that जो भी अगर पहले के एक्सपीरियंसेस में when I was being myself और उस चीज से मुझे कुछ नुकसान हुआ है तो मैं वो पार्ट करेक्ट कर लूंगी rather than changing the whole thing, right? So अभी I really could not sustain that thing कि हाँ मैं बहुत introvert हूँ और मैं किसी से बात करती हूँ, so I could not maintain that thing, and then I just came out like that and I'm very good friends with everyone और बहुत मस्ती मजाक होती है सेट पे, बहुत touchwood, बहुत healthy environment है and everybody is very cooperative, there are shows, there are people, जब किसी को जब आप एक लेवल पे पहुंच जाते हो, एक लेवल पे फेमस हो जाते हो, so you kind of have those things overpower you, और उसके वजह से और भी बहुत सी we cannot deny कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जेलसी फैक्टर होता है, ये फैक्टर होता है, वो फैक्टर होता है, तो किसके दिमाग में क्या चल रहा है यू नेवर नो। सो यहाँ पे टचवुड मुझे डे 1 से ऐसा कभी भी फील नहीं हुआ है, सब लोग बहुत वार्म है, बहुत वेलकमिंग और बहुत सपोर्टिव है, ऐसा कुछ नहीं है कि हम एक दूसरे की मदद भी करते हैं, वी आर नॉट वेरी, जैसे होता है ना कि हाँ अब हम एक्शन से कट के बीच में भी हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है और कट होने के बाद भी हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। सो इट टुक मी अ लिटिल बिट ऑफ टाइम, बट देन नाउ आई हैव ओपनड अप एंड आई एम ऑलमोस्ट फ्रेंड्स विद एवरीवन इन द शो। ओके, सो इस तरह की बॉन्डिंग रहती है तो काम भी अच्छा होता है, दिखती भी है फिर वो ऑन स्क्रीन। यस। ओके, सो मूविंग ऑन टू कोरल, मैंने जैसे कि आपने भी फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देते हुए कहा कि एक्टिंग हमेशा से नहीं करना चाहते थे, एंड ऑल्सो आई हैव रेड समवेयर कि यू वांटेड टू बी अ कोरियोग्राफर। तो अगर एक चीज चूज करनी हो, और मैंने सोशल मीडिया भी देखा आपका एंड यू लाइक टू सिंग, सो कभी चूज करना पड़ जाए एक्टिंग, सिंगिंग और डांसिंग में से, व्हाट विल यू चूज? ओके, सो आई विल चूज थिएटर, ओके, क्योंकि उसमें सब आ जाता है, Smart. I will choose theater because उसमें सब आ जाता है, and it really pains my heart that हम एक ऐसी हम इंडिया में पैदा हुए हैं, हमारे पास इतनी कल्चरल हेरिटेज है कि जो पहले आप देखो बहुत सारे फॉर्म्स हैं थिएटर के, नुक्कड़ नाटक है, पहले के जमाने में जब स्क्रीन नहीं था then people were only dependent on real artists and stage and everything for their entertainment, okay? and उस टाइम पे आर्ट की और कलाकारों की वैल्यू बहुत डिफरेंट थी और बहुत ज्यादा थी। सो आई थिंक जैसे कि मैंने आपको बोला कि सब कुछ घूम के वापस आता ही है, सो आई रियली होप जैसे कि वो टाइम दोबारा आए। वेस्टर्न कंट्रीज में ये चीजें बहुत ज्यादा प्रचलित है, लाइक आपका ब्रॉडवे शोज हो गए, लाइक एवरीथिंग, सो that is something I originally want to do because stage is a place which makes me feel the most alive, I would say, क्योंकि वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं करते हो, आप नाचते हो, आप गाते हो, आप एक्टिंग करते हो, you're like an open book, right? So that, and also I have done my studies, my graduation in choreography
वाह. So when I used to be in college, तो हमारे एग्जाम्स के पैटर्न ही ये होते थे कि आपको एक पूरा शो पुट अप करना है. आप एक स्टोरी लो, कोई भी स्टोरी लो, माइथोलॉजी से लो, हिस्ट्री से लो, अपनी कोई स्टोरी बनाओ, कोई भी एक स्टोरी लो, उसमें आप कैरेक्टर्स डालो, उसमें आप सिंगिंग डालो, लाइव इंस्ट्रूमेंट्स हैं. Like a musical drama, right? Yeah, exactly. Yeah. Exactly, drama. I love drama on stage. So if asked कि आपको क्या करना होगा, I would definitely do theater. Yeah. Okay. So have you any plans of doing some work on OTT platforms or music videos, because आजकल बहुत ज़्यादा trend चल रहा है, actors are doing so many music videos. Okay. So there's one thing. Yes, OTT. I mean, I've already been a part of 5 OTT shows. So my OTT shows are in MX Player, in Okay. Balaji. Oh yeah, I forgot that. Sorry. Yeah, I know. I remember. Okay. That's okay. There's another OTT which is coming up in Netflix in November. Okay. You know, so yeah. So OTT. I mean, OTT is the future. We cannot deny this. OTT is the future, and I am. So this year I have 2 series that will be releasing in OTT. Okay. So I'm expecting a bit more exposure for myself for it. And abhi bhi, see, TV is something जो कि ऐसी हमारे इंडिया में इतनी डेवलपमेंट अभी हुई नहीं है जहाँ पे लोग सिर्फ OTT देखते हैं. अभी भी ऐसी बहुत सारी जगह है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो टीवी देखते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं. तो टीवी का अब वो मुझे exactly statistics पता नहीं है that how is the market working for TV and for OTT respectively, but then yes, OTT is the future. And quality, the kind of work that I want, okay, the kind of work that I want, the kind of actor that I am, क्योंकि मुझे हमेशा जो मेरे डायरेक्टर्स होते हैं शोज के, वो भी हमेशा बोलते रहते थे कि कोरल इतना सटल मत कर. एंड जब आप किसी OTT के शो की या फिर किसी OTT के आर्टिस्ट की तारीफ सुनते हो, तो वहां पे वही था कि कितना सटल किया, लाइक यू नो. तो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस. तो मुझे जहां तक समझ में आता है कि मेरी कैटेगरी जिस कंपार्टमेंट में मैं फॉल करती हूँ, वो completely OTT वाली ही है. Okay, thank you so much for talking with us. It was really nice talking to you and listening to you. Thank you. Nice talking to you too. And all the best for your future series. Thank you so much. Thank you. And hope to interview again. Sure, definitely. Looking forward. Okay. Bye-bye. It was pleasure talking to you.